Okay, so let us start with today's session with a very quick revision of magnetic force on an wire of arbitrary shape. तो अगर आपको याद होगा हमने कल arbitrarily shaped wire पे magnetic force कितना act होगा वो देखा था. So arbitrarily shaped wire let us find an expression for what is the total magnetic force acting on this wire. तो सबसे पहले if you remember you had आपके पास एक magnetic field था and that magnetic field was coming out from the plane of board. It is coming towards you. You can say that. तो आपके पास magnetic field है which is coming out from this plane, something like this. So you had magnetic field everywhere in this region, something like this, and then you had arbitrarily shaped wire. एक random shape का आपके पास wire था. So you have a wire something like this. So what you did was the first step. तो सबसे पहले situation क्या है उसको समझो और उसको explain करो. So you have a wire of random shape. So consider a wire of arbitrary shape. Then, of course, what you did was क्या किया था हमने इसको small elements में divide किया था. So let us divide this wire into small elements. So let us divide this wire into small elements. So let us assume the wire to be made up of large number of small length elements, each of length dl, then magnetic field के बारे में बताना पड़ेगा. So let there is magnetic field coming out from the plane of paper. मान लो ये paper है, so it is coming out from this plane towards you, coming out from the plane. Okay, then magnetic force होने के लिए what is required? क्या होना चाहिए? वायर में क्या होना चाहिए? Current. So let I be the current to the wire. Then I told you need to consider any length element at some point P. So let us take this is point P and this is length element dl. So you have to assume a length element, कोई भी एक ले लो, क्या फर्क पड़ता है? Take any. So consider a length element at point P. Magnetic force acting at this length element is क्या था magnetic force का formula? What was force acting on element due to external magnetic field, and the current here was, if you remember, it was I. क्या था formula? dfm equal to I dl bar cross b bar. Right? This is force acting on a small length element located at point P. Therefore, total force acting on the wire
How did you find out total force acting on the wire? Integration. So total force acting on the wire, Fm bar, is integration over all the forces acting on each of this small length element. Then ये आपके पास आएगा I dl बार क्रॉस b बार. डजंट मैटर आप यहाँ पे ब्रैकेट लिखो मत लिखो, क्योंकि dl बार क्रॉस b बार ये वेक्टर है. How does it matter if I write a into b into c, or if I write ab into c, or I write b into ac? Doesn't matter, it is the same. हाँ, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का सीक्वेंस उल्टा नहीं कर सकते. यू कैनॉट राइट बी बार क्रॉस डीएल बार. अगर वैसा लिखते तो माइनस साइन लिखना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस. आई हमने स्केलर वैल्यू क्रिएट किया है, तो आई को हम यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हैं. सो डजंट मैटर. और इनफैक्ट इवन इफ यू डोंट राइट ब्रैकेट इज आल्सो ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो देन यू विल हैव Fm vector equal to I vector, I not vector, scalar quantity current dl bar cross b bar. I हमने बाहर क्यों निकाला? Because as you see here we have mentioned let I be the current. The moment you say let I be the current, मतलब आप बोल रहे हो कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट है. तो वैल्यू ऑफ करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस वायर. दैट इज वाई. और ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर हमने बी बार को भी निकाला है. बी बार को आप इंटीग्रेशन के बाहर कब निकाल सकते हो? जब बी बार भी कांस्टेंट हो. इसका मतलब अजम्पशन है यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. तो जहां पे भी आपने मेंशन किया होगा कि लेट बी इज मैग्नेटिक फील्ड, जहां भी किया होगा वहां पे बोल देना दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. अगर नहीं किया तो कर दो. सिंस बी बार इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है. लेट अस कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो यहां तक हमने कल ये टॉपिक तक कवर किया था. गुड. नाउ गोइंग फॉरवर्ड you want to find out, of course you want to find out what is force acting on a closed circuit या loop, circular loop. So let us find out what is force. Of course कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक. यहाँ पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं. तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन a closed circuit, closed loop भी बोल सकते हो, in a magnetic field. Of course magnetic force magnetic field में होगा. So okay, तो let us say हमारे पास एक ऐसा लूप है. So you have something like this, right? तो वापस एक्सप्लेन करना चालू करना पड़ेगा. क्या बोलोगे? कंसीडर अ क्लोज्ड सर्कुलर लूप ऑफ वायर. कंसीडर अ क्लोज्ड सर्कुलर लूप ऑफ वायर kept in an external magnetic field B bar coming out from the plane. The magnetic field is coming out from the plane. Okay, so here you have a magnetic field. Okay, so we have this magnetic field, external magnetic field in this region. यहाँ पे yesterday I asked some of you what is the total force and you said this dl bar will be 2 pi r. That was not right. इसलिए हमको details देखने हैं आज why it is not correct. So again the same thing. ये magnetic field है which is coming out from the plane. You have here length elements. ये पूरे वायर को आपने डीएल में डिवाइड करके रखा है, राइट? तो ईच ऑफ दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट. नाउ
There's current through it. अब आपके ऊपर है, you have to take direction of current as you want. आप clockwise दे सकते हो, anti clockwise दे सकते हो, आपके ऊपर है. You can take current in this direction, clockwise or anti clockwise. So there is current I through this wire. Now, of course, आपको इस पर total force निकालना है. We are not talking about force on a single element. हमको पता है. Okay, तो आप बोल सकते हो force acting on a small length element is, क्या था फोर्स? DFM बार इंटीग्रल I इंटीग्रल DL बार क्रॉस B बार. Was this force on small element or a total force? इंटीग्रेशन मतलब क्या? टोटल. तो you will have to say this is on स्मॉल लेंथ एलिमेंट. करेक्ट. अभी तक आपने आई को एक्सप्लेन नहीं किया तो बोल दो वेयर आई इज करंट. क्या फर्क पड़ता है? यू कैन जस्ट से इट लेटर, वेयर आई इज करंट थ्रू द वायर. नाउ टोटल आपको पता है. टोटल फोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन 1. टोटल फोर्स इज FM बार I DL बार क्रॉस B बार. ये आपने ऑलरेडी बोला है, तो वी नो दिस, वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव अगेन. इंटरेस्टिंगली DL बार मतलब लेंथ एलिमेंट्स को आपने वेक्टर लिया है. नाउ लेट अस टेक डायरेक्शन ऑफ दिस एलिमेंट्स. ये एक, इस पे फोर्स निकालेंगे, फिर इस पे फोर्स निकालेंगे, फिर इस पे फोर्स निकालेंगे, सो ऑन सो फोर्थ. तो ऐसे हर एक लेंथ एलिमेंट को आप फोर्स निकालोगे, सबको आप ऐड कर रहे हो. करेक्ट, राइट? फ्रॉम बेसिक्स ऑफ 11th, टेल मी व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस. व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस? All these forces, F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6. What is the resultant force acting on a particle at point A due to forces F1, F2, F3, F4, F5, F6? What is total force here? 0. Why 0? अगर starting और end point same हो तो forces cancel out. They are in equilibrium. So now, अगर ऐसा नहीं याद रहता है तो हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक, वेरी वेरी सिंपल ट्रिक. बाय द वे, आप वेक्टर्स को कहीं भी उठा के रख सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर नॉट चेंजिंग डायरेक्शन, यू आर नॉट चेंजिंग मैग्नीट्यूड. आई कैन कीप इट हियर, आई कैन कीप इट हियर, आई कैन कीप इट हियर. मैंने डायरेक्शन चेंज किया? नहीं. मैग्नीट्यूड चेंज किया? नहीं. तो आई कैन कीप इट हियर आल्सो. फाइन. ये वेक्टर है, इसको उठा के यहां रख दूंगा, doesn't matter. ये जो वेक्टर है इसको भी उठा के यहां रख दूंगा, इसको उठा के यहां रख दूंगा, and this is a vector, I can keep it over here. So these are the vectors which are concurrent. They start or end at the same point. So what is the total? 0. Good. अब हमने जो DL बार, DL बार, DL बार, ये भी देखो, तो ये भी स्टार्टिंग पॉइंट हो. लेट अस से इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ऑल दिस DL बार, DL बार, DL बार एडिंग अप, यू विल गो बैक टू द सेम पॉइंट. मतलब यहाँ पे इन दिस केस इंटीग्रेशन DL बार विल बी 0, राइट? क्यों? क्योंकि ये, यू अंडरस्टैंड, ये DL बार वेक्टर है और ये सारे DL वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे आके वापस खत्म हो रहे हैं, राइट? So here integration DL bar is 0 since vectors are cyclic. Okay, since vectors DL bar are cyclic, मतलब वो 0 होता है basically. Therefore, what will be the force? DL बार 0 हो गया, इंटीग्रेशन DL बार 0 हो गया. बाय द वे, ऐड करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद 0 होगा. हर एक एलिमेंट पे, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स व्हिच इज गिवन बाय I DL बार क्रॉस B बार. इसलिए पहले लिखा मैंने कि हर एक पे फोर्स है.
टोटल लूप पे फोर्स नहीं है, जीरो है, राइट। तो Fm बार इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ तो I से मल्टीप्लाई किया जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट भी तो प्रोडक्ट है तो ये भी जीरो, तो टोटल फोर्स इज जीरो, राइट। तो इट इज नॉट 2 पाई आर, integration dl bar is not 2 pi r, it is 0. So what is the total force, magnetic force on any circular loop due to current I? 0. Very good, done. Yahan tak clear? If this is clear, we can go ahead with next topic. If you remember, पिछला मतलब नॉट पिछला, इसके पिछला बोल रहा हूं मैं, इससे पहले हमने एक चैप्टर देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एमीटर और वोल्ट मीटर हमने सीखा था। और एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे बनता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक रेजिस्टेंस आप अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इट कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर, अगर आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इट कैन बी कन्वर्टेड टू एन एमीटर। गुड। तो आई टोल्ड यू इन शॉर्ट कि वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या था। डू यू रिमेंबर कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? क्या था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन? मैग्नेट्स, ओके, यू हैव मैग्नेट्स वन बाय वन, यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, गुड, यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। उसके बाद yes, there was a coil, rotating coil, क्यों बाद में देखेंगे, but there was a coil here, there was a coil which was carrying current, right? So first of all, ये rotate क्यों होता है, ये rotating क्यों है, that we will learn, but first of all there is a coil carrying current kept inside magnetic field, some external magnetic field, then as she said rotating coil, rotate कब होता है, ये दरवाजा कब rotate होगा? नहीं, I told you there is a difference between linear motion and rotational motion. Object performs linear motion when external unbalanced force acts on it, right? A body rotates if external unbalanced torque acts on it, right? तो ये rotate कब होगा? when torque acts on this coil. Which coil? Current carrying coil, when it is kept in external magnetic field. So now we want to find equation for that torque, क्योंकि moving coil galvanometer work कैसे करता है उससे पहले का बेसिक है। You need to know, you must know what is the equation for torque. So torque acting on a coil, it need not to be circular coil always, it can be square or rectangular coil. So torque acting on a coil in external magnetic field, external magnetic field, तो हम लिखने का काम बाद में करेंगे। We'll first go through derivation, which is very interesting and easy. So let us take electromagnets. I hope you know what is electromagnet. Okay, I am hoping that you know what is electromagnet. So let's say ये हमारे पास electromagnet है. How many of you don't know what is electromagnet? 1. Okay, 2, 3, counting. Anyways, तो मैं बता देता हूँ what is electromagnet. I'll tell you what is electromagnet. So there are two types of magnets. Of course, you know. एक तो होता है वो black colored one, magnetite, naturally occurring magnet. वो naturally occurring magnet is actually ore. There's a place somewhere in the Europe, मुझे नाम नहीं याद. वहाँ पे if you dig, you get such magnets. That is naturally occurring magnet. वो black color जो आप लाते हो, उसको throw करते हो, they attract. That is one of them. दूसरा एक होता है electromagnet. So what you do is, in such cases, very interesting thing, application of physics. आपके पास एक rod है,
एक दूसरा रॉड है, यू हैव वाइंडिंग ओवर हियर, सो आप एक वाइंडिंग करते हो इसके ऊपर, वाइंड वायर हियर एंड ऑल्सो ऑन दैट वन एंड ऑल्सो हियर, तो यू पुट अ वाइंडिंग मोर और लेस, समझ लेना आप, समझ लेना। तो क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट करेंगे। गोइंग बैक टू 11th बेसिक्स, अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल में करंट है, अगर आप यहां से देख रहे हो तो वो आपको क्लॉकवाइज दिखता है, सेम करंट को अगर आप इस तरफ से देखोगे तो इट विल लुक लाइक एंटी क्लॉकवाइज। सो this side of the coil will be north pole because you're looking from this side and you are seeing this current to be anti-clockwise. Okay, same coil, same current, if you look from the other side it looks like south pole because current will generate magnetic field. So that is why आपने प्रूव किया था, अगर रिक्वायर्ड होगा तो वापस करेंगे, करंट कैरिंग कॉइल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ऐसा टॉपिक था, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मतलब नॉर्थ और साउथ होगा, और वैसे भी मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। गुड, सो व्हाट हैपेंस इज, आपने यहाँ पे दो रॉड लिए, उसके ऊपर वाइंडिंग किया है, एक में क्लॉकवाइज करंट है, इट विल एक्ट एज साउथ पोल, एक में एंटी क्लॉकवाइज, इट विल एक्ट एज, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, करंट बेसिकली। एनीवेज, तो यहाँ पे जो मैं आपको ये दो बता रहा हूं, these two are, so one will be south pole, another will be north pole. So anyone depending on current, you can say north or south, doesn't matter, it is magnet. इस मैग्नेट में आपने एक कॉइल को रखा है, so let us keep a coil here in the form of rectangle or square, जो भी है, let us take rectangular coil. So we have rectangular coil. अब मैं इंटेंशनली इसको ऐसा ज्वाइन नहीं करने वाला, करंट कहां से भेजो फिर, if you touch it like this you have to send current inside, करंट कैसे भेजोगे, तो there should be one way to go in and the same current should be able to come out also, तो ऐसा है, so you have more or less something like this. तो अभी इमेजिन कर लेना, इमेजिन, I know I'm not a good drawing teacher, so I don't care for the drawing, whatever it is. ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मान लेते हैं ये जो साइड है इसको हम बोल देते हैं B. सो रेक्टेंगुलर कॉइल है तो रेक्टेंगुलर के दोनों साइड सेम नहीं होते, तो मान लो ये साइड है A, ये साइड है B, आपने करंट यहां से भेजा, तो करंट इज गोइंग फ्रॉम दिस वे, इट विल गो हियर, it will go here, then here and it comes out. Good. Without name अच्छा नहीं लग रहा है, so let us give it some name, A, B, C and D. Book to book या मेरे notes में भी I may have written something else, doesn't matter. Important is you have electromagnet and you have a coil which is carrying current I and it is kept inside एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट, यहां तक समझा। इसमें दो केसेस, एक मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप, मतलब ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, लूप, दिस इज दैट रेक्टेंगुलर कॉइल, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस, इट इज इन द प्लेन ऑफ दिस कॉइल। इमेजिन you have this, ये coil, ये जो coil है इसको ऐसा रख दिया मैंने, ये this is the coil, okay, and magnetic field is parallel to it, मतलब magnetic field is in the plane of the loop, क्योंकि उस पे भी equations vary करेंगे, तो ये magnetic field का डायरेक्शन भी ड्रॉ कर देते हैं।
This is how magnetic field is going in the plane of the loop. This is magnetic field. Good, good. Correct? Now, of course, what will be the next step to find out what is force acting on this current carrying coil inside external magnetic field? तो ऐसा करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम इस कॉइल को 4 साइड में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. Do you remember what was force, equation of force, magnetic force acting on a current carrying conductor of length L? बिल साइन थीटा. तो फोर्स का इक्वेशन याद रखना, बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा. एक साइड, look here, and by the way theta was angle between B and L, length, element and magnetic field. For side AB, length element is from A to B, correct, which is A. अब नाम भी वेरी कर सकता है, but anyways A. तो यहां पे जो फोर्स एक्ट होगा it will be BIL, और L आप बोल रहे हो it is A. Current is I, magnetic field is B, angle is 90. A to B ये लेंथ एलिमेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड देखो इसको परपेंडिकुलर है, साइन 90, तो फोर्स इज BIA. फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज BIA. और मैंने डायरेक्शन तो बताया था आपको, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. ठीक है, हम देखते हैं बाद में, डायरेक्शन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. BC फोर्स एक्टिंग, ये बाय द वे साइन 90 था, इसके लिए मैंने इसको BIA लिखा था. BC, व्हाट इज लेंथ? L is B, करंट इज स्टिल I, मैग्नेटिक फील्ड इज B, एंगल. मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दे आर पैरेलल, मतलब एंगल इज 0. व्हाट इज साइन 0? 0. मतलब BC साइड पे फोर्स एक्ट नहीं करेगा. CD, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड CD विल बी, ये CD और B they are perpendicular but not 90 degree, 270. क्योंकि ये 90 लिया है तो ये उल्टा डायरेक्शन है ना, तो दैट विल बी 90 plus 180. If I say this and this is 90, बराबर, करेक्ट. करंट का कोई भी एक आप ले लो, you see you can take direction of magnetic field as this and current as this. कितना एंगल था? अभी मैं करंट का डायरेक्शन क्या ले रहा हूं? उल्टा. तो कितना आएगा? 90 plus 180, मतलब कितना आएगा? 270. तो here you will have BI again. What is this side length? A. Sine of 270. What is sine of 270? Minus. So what is important is minus here. ओके, और DA का वापस वही स्टोरी, ये 0 था तो ये 180 होगा. मैग्नेटिक फील्ड B में और DA लेंथ एलिमेंट में एंटी पैरेलल इज 180 साइन 180 इज 0, तो ये इस पे भी फोर्स 0, राइट. मतलब इफेक्टिवली सिर्फ AB पे और CD पे ही फोर्स एक्ट हुआ, BC और DA पे फोर्स एक्ट नहीं हुआ. गुड. और उसमें भी AB पे जो फोर्स है BIA और CD पे जो फोर्स है वो नेगेटिव के साथ है. सो फोर्स ऑन CD इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन AB. व्हाट डज नेगेटिव साइन टेल यू? फोर्सेस आर अपोजिटली डायरेक्टेड. जब दो फोर्सेस अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं और अगर एक सेम पॉइंट पे एक्ट हो तो कैंसलेशन. वो देखा है रस्सी का गेम,
बीच में एक कुछ बांध के रखा है इस तरफ से, वन टीम इज पुलिंग, दैट साइड अनदर टीम इज पुलिंग, forces are opposite directed. If the forces are also equal, no displacement, right? So two forces equal and opposite, equal in magnitude, opposite in direction, acting at the same point, resultant is 0. यहाँ पे सेम पॉइंट पे एक्ट हो रहा है क्या? नहीं, एक हो रहा है ए बी पे, एक हो रहा है सी डी पे। तो पहले देख लेते हैं इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स, एक फोर्स, आई एम नॉट taking into consideration exact directions according to right hand screw rule, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट? अगर ये ऊपर गया तो सीडी का नीचे आएगा, दैट इज ऑल आई एम वरीड अबाउट। तो फिलहाल आई डोंट केयर फॉर एग्जैक्ट डायरेक्शन, राइट? ए बी पे फोर्स अगर ऊपर है, ऊपर मतलब समझ लो, ये थोड़ा इमेजिनेशन आपको रखना पड़ेगा। ऊपर मतलब आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, ये दिस साइड ऑफ द पेज इज कमिंग टुवर्ड्स यू, देन द अदर साइड इज गोइंग अवे, राइट? फोर्सेस आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो मतलब क्या होगा? रोटेशन, करेक्ट? ये साइड ए बी बाहर की तरफ आएगा और सी डी अंदर की तरफ जाएगा, तो देयर विल बी रोटेशन। व्हेनेवर देयर इज रोटेशन यू टॉक अबाउट टॉर्क, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे torque acting on a coil. So how do you find out equation of torque? How to find out equation of torque? Basic. There are two ways of finding out equation of torque. Number one थोड़ा लेंदी है, number two simple है, तो मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले rotation is always about a given axis. अब ये दरवाजा, you have a door right here. When you push it, मतलब force multiplied by distance, that is torque. This door is rotating about बिजागरे, वो बिजागरे है ना वहां पे, you have put some, I don't know what is called in English, hinges. So this door will rotate about hinges, hinges will act as axis. तो जब सिंगल फोर्स होता है, सिंगल फोर्स को multiply by perpendicular distance from axis of rotation, you have this axis of rotation. Rotational dynamics भूलना नहीं. If you forget, you're gone. You cannot afford to forget rotational dynamics. So वो याद रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा डोर है, ये उसका हिंज है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस केस में सिंगल फोर्स आपके लिए रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ये है उसका लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब the direction along which force is applied, line of action. Force का application, उसका perpendicular distance from axis of rotation r. By definition, torque is r bar cross f bar. मतलब perpendicular distance of force from axis of rotation multiplied by force is torque by definition. कब? जब सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा है तब। बाय द वे, जरूरी नहीं है कि सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करेगा हमेशा। यू कैन हैव अ रॉड, इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया नीचे इधर, और एक मैंने अप्लाई कर दिया अपोजिट एंड पे ऊपर, राइट? पहले केस में सिंगल फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया, उसको आप बोलते हो टॉर्क, लेकिन टॉर्क के साथ और एक नाम देते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ रोटेशन। मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि सिंगल फोर्स ने रोटेशन मोमेंट प्रोड्यूस किया था। यहां पे किसने किया? दो कपल। इसमें टॉर्क को क्या बोलते हो? मोमेंट ऑफ कपल, राइट? इसमें डिफाइन कैसे करते हो टॉर्क? इसमें बोलते हो आप टॉर्क के लिए, टॉर्क इज डिफाइंड एज, मोमेंट ऑफ कपल इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, मॉड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। क्यों वन ऑफ द फोर्सेस? अभी एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू ऑफ वन ऑफ दिस। देखा ना आपने यहाँ पे BIA, ये माइनस BIA, दोनों में से कोई भी एक लो विथ मॉड वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का मिनिमम डिस्टेंस. यू कैन नॉट टेक लाइक दिस इज नॉट मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मतलब अगर इस डिस्टेंस को मैं r बोलता हूं तो f इंटू आर, ये भी f इंटू आर, ये भी f इंटू आर. राइट? इज इट क्लियर? तो दो तरीके से आप टॉर्क का फॉर्मूला बना सकते हो. आई टेल यू बोथ ऑफ देम. पहला वाला थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है एंड दूसरा वाला इज जस्ट इजी, वेरी इजी. तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब सिंगल फोर्स इज प्रोड्यूसिंग रोटेशन. बाय द वे उसके लिए हमको चाहिए एक्सिस. तो लेट अस लोकेट एक्सिस फर्स्ट. अब जब ये कॉइल रोटेट होगा तो इट विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द कॉइल. करेक्ट? अगर ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस b है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हुआ? b by 2. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स? लेट अस से फोर्स एक्टिंग ऑन AB. This is force acting on CD. What is the distance of force AB from axis of rotation? ये साइड AB है, इस पे लग रहा है फोर्स. साइड AB का एक्सिस से डिस्टेंस कितना? अरे b by 2. पक्का? चल. तो बाय डेफिनेशन टॉर्क क्या था? इफ सिंगल फोर्स इज एक्टिंग, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल फोर्स इज एक्टिंग, तो टोटल टॉर्क इज टॉर्क एक्टिंग ऑन AB प्लस टॉर्क एक्टिंग ऑन द अदर साइड CD. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टॉर्क? डिस्टेंस इनटू फोर्स. डिस्टेंस कितना? b by 2. फोर्स कितना था? ये इधर लिखा है आपने BIA, तो मैं इसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. राइट? प्लस फोर्स ऑन CD. Force on CD. What is the distance of CD from axis? b by 2. So this is again b by 2. And what is force FAB? BIA. BIA. और ये b by 2. और ये FCD force is also BIA. Negative sign. Negative sign tells you only direction is opposite. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ magnitude of force की. उसको माइनस कर दे तो जीरो हो जाएगा वो. टॉर्क जीरो मतलब there is no rotation. गुड. तो जीरो नहीं करना है हमको, तो प्लस BIA b by 2. व्हाट इज हाफ प्लस हाफ? 1. तो BIA b. करेक्ट? व्हाट इज A into B? A into B. A is one side of rectangle, B is another side. What is side length into breadth? Area of this coil. So this is nothing but area of the coil. मिल गया टॉर्क का इक्वेशन. टोटल टॉर्क बाय मेथड 1. हमने यहाँ पे ऐसा बोला क्या? इस दिस कॉइल इज n नंबर ऑफ टर्न्स? नहीं, हम मतलब क्या अज्यूम कर रहे थे? सिंगल टर्न. व्हाट इफ देयर आर n टर्न्स? इफ द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक ही करंट n टाइम्स सर्कुलेट होगा, मतलब n टाइम्स ये टॉर्क एक्ट होगा, क्योंकि हर एक बार AB फिर CD, फिर वापस से अगला टर्न AB, फिर CD, फिर अगला टर्न AB CD, कितने बार? जितने टर्न्स है. तो व्हाट विल बी टोटल टॉर्क? NBI. करेक्ट? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये मेथड 1 था. मेथड 2 इज जोक. मेथड 2 में बोलना अरे नहीं ये भाई भाई है, कपल. राइट? सो इफ यू नो दे आर कपल, यू नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स. और टॉर्क which is nothing but moment of couple. यहाँ पे this is not moment of force anymore. By definition, magnitude of one of the forces, it is, मैं लिख देता हूँ 11 standard, magnitude of one of the forces from the couple, one of the forces multiplied by perpendicular distance between the forces. Between the forces. ये ज्यादा सिंपल है. क्यों? क्योंकि दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड
BIA कोई भी एक BIA. What is perpendicular distance between these two forces? इस एंड से इस एंड तक, B से C तक कितना डिस्टेंस है? B. So this is B. What is A into B? Area. वापस this argument will again followed here. So this argument goes here again. अगर n टर्न्स होंगे तो NBIA, राइट? तो अभी आपके ऊपर है, if you want to make it complicated or if you want to just use torque as moment of couple, right? तो so far what we have done is, आज हमने we have seen what is the torque acting on a rectangular loop carrying current kept in external magnetic field, okay, and that is given by NBIA, right? ये समझेगा तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ समझ में आएगा. अगर ये नहीं समझा, ये इक्वेशन नहीं समझा, MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, not Melbourne cricket ground. You will not understand anything if you don't understand how this equation comes. And by the way, equation तो ठीक है, डायमेंशनली भी चेक कर लेंगे. कॉन्सेप्ट वाइज दो फोर्सेस सिर्फ दो साइड्स पे एक्ट कर रहे हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दे प्रोड्यूस रोटेशन, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन थिंग्स.